Hello student, myself Professor Anjali Patel from Raffle BBA College Vapi, subject entrepreneurship development in your TY BBA in your semester 5. We have already started with us unit number 4, that is sickness in enterprises. In that we are going to learn the warning signals and remedies being required. We are going to learn the rehabilitation of the sick project. We are going to learn the definition of the sick unit and its causes, and then we are going to learn about the rehabilitation institute for the sick project. Now what is sickness? Sickness is nothing. What is sick industry or what is a sick unit? In a common language, sick unit is nothing but a unit which is not healthy. But the question is, what is a healthier unit? Healthier unit is a unit where you can earn a reasonable return on your investment and you can have a reserve build after providing your reasonable depreciation. नाउ सिक यूनिट ऐसी यूनिट होती है जो लॉसेस इनकर करती है फॉर द 1 ईयर एंड इज गोइंग टू हैव अ लॉसेस फॉर द फॉलोइंग ईयर एंड हैविंग अ इम्बैलेंस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. Now, what is industry sickness in a detailed way? Industry sickness or industry company are the company which are having a losses being incurred at the end of financial year and are going to be having losses incurred in the following year. And these losses are going to be incurred either it can be equal to the net worth or either it can be exceeding the net worth or either it can be a greater than the net worth. जब आप ऐसे लॉसेस इनकर करना स्टार्ट करोगे तो आपकी कंपनी जो होगी वो सिक यूनिट होगी. इंडस्ट्री सिकनेस जो डिफाइंड ऑल ओवर द वर्ल्ड यही है, अ कंपनी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर accumulated losses which can be equal to net worth, which can be either exceeding the net worth और जिसका imbalance financial structure होता है. ठीक है, अभी which type of unit are a sick unit? कॉमन लैंग्वेज के हिसाब से हमने देखा कि सिक यूनिट मतलब ऐसी यूनिट जो हेल्दी या नहीं होती है. इन्वेस्टर के हिसाब से हम बोले तो जिसको रीजनेबल डिविडेंड नहीं मिल रहा है, तो जिसको डिविडेंड नहीं मिल रहा है उस इन्वेस्टर के हिसाब से वो यूनिट सिक होगी. बैंकर के हिसाब से हम बोले तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो प्रीवियस ईयर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लॉसेस इनकर हो रहा है, तो उस बैंकर के हिसाब से वो यूनिट सिक यूनिट होगी. इंडस्ट्री के हिसाब से क्या होगी, लॉसेस इनकर हो रही है और यूनिट क्लोज होने वाली, तो वो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वो यूनिट जो होगी वो सिक यूनिट होती है. डेफिनेशन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके हिसाब से हम डेफिनेशन समझे तो डेफिनेशन ये है कि जो भी यूनिट लॉसेस इनकर कर रही है for the 1 year, they're going to be having losses for the current year and even for the following year. जिसका imbalance financial structure है, जिसका current ratio less than 1:1 है, जिसका debt equity ratio भी worst है, उसको हम बोलेंगे industrial sickness as per the Reserve Bank of India. Now, according to Company Act 2002, what is a sick unit? A unit which is going to have a accumulated losses, which is either equal to or which is either exceeding to the net worth. ठीक है, unit which is going to fail to repay its debts within its 3 consecutive quarters, creditors का अपना पेमेंट नहीं कर रहे, उस यूनिट को हम बोलेंगे सिक यूनिट. ठीक है, एंड डेफिनेशन हैज पर द डेवलपमेंट कमीशन, उसने क्या बोला है कि जो भी इंडस्ट्री यूनिट सिक यूनिट होती है उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो होता है वो लेस देन 50% होता है. ठीक है, 15% से लेस अपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. नेट वर्थ जो है वो आपका स्पॉइल हो रहा है और यूनिट जो है वो क्लोज हो रही है फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 6 months, उस यूनिट को हम बोलेंगे सिक यूनिट बोलेंगे. ठीक. Now, what are the symptoms or warning signals for the industry sickness? फर्स्ट आप देख सकते हो डिक्लाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. जब भी आपका यूनिट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेस देन 50% हो गया तो उस यूनिट को हम बोल देंगे अ सिक यूनिट. ठीक है, उसके बाद शॉर्टेज ऑफ लिक्विड फंड टू मीट योर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, आप अपना पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो उस यूनिट को भी हम क्या बोलेंगे, सिक यूनिट बोलेंगे. तो आपके पास इतने फंड्स नहीं है कि आप अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर सकते हैं, आपके पास इतने फंड नहीं है कि आप अपनी स्टैट्यूटरी लायबिलिटी पे कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग बिल्स पे कर सकते हो. ठीक है, तो उस यूनिट को हम बोलेंगे सिक यूनिट. जब आपने डेटा सबमिट नहीं किया, दैट इज अ नॉन सबमिशन ऑफ डेटा टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तभी भी हम बोल सकते हैं इंडस्ट्री सिकनेस का एक सिग्नल्स है.
Whenever you are having a irregularity, बैंक अकाउंट मेंटेन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, तभी भी हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री सिकनेस हो सकता है। फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन हो रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, तभी भी हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री सिकनेस हो रहा है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, आप अपनी लाइबिलिटी को पेमेंट नहीं कर रहे, जैसे कि प्रोविडेंट फॉर सेल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी, आप डिले कर रहे हो, ये सारे पेमेंट स्टैट्यूटरी ड्यूज जो होते हैं वो पेमेंट कर रहे हो, उस टाइम भी हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री सिकनेस होने वाली है। ठीक है, डिक्लाइन इन योर टेक्निकल डेफिशिएंसी ज्यादा है, तो उस टाइम भी हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री सिकनेस होने वाला है। फ्रीक्वेंट टर्नओवर हो रहा है एम्प्लॉय का, तभी भी हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री सिकनेस हो रही है, तो इंडस्ट्री सिकनेस फ्यूचर में होगा। ठीक है, जब भी आप रैपिड एक्सपांशन कर रहे हो, ठीक है, you are having a rapid expansions और अननेसेसरी टू मच डाइवर्सिफिकेशन आप कर रहे हो, तो उस यूनिट को भी हम बोलेंगे इंडस्ट्री सिकनेस हो रहे हैं। ठीक है, यू आर फेलियर टू पे योर स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, ठीक है, लार्जर और लॉन्गर आउटस्टैंडिंग बिल अकाउंट है, तो उस यूनिट को भी हम बोलेंगे इंडस्ट्री सिकनेस है। ठीक है, तो ये सारे आपकी इंडस्ट्री सिकनेस हो सकती है, तो जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि ये इंडस्ट्री सिकनेस आपकी यूनिट में फ्यूचर में होगी। डिक्रीज हो रहे आपके वर्किंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिटर्स आपके बढ़ रहे हैं, डेप्टर्स आपके बढ़ रहे हैं, आपकी इन्वेंटरीज बढ़ रही, ये भी एक रीजन हो सकते हैं कि आपके सिम्टम्स है, सिग्नल्स है वर्क आपके इंडस्ट्री सिकनेस के। ठीक है, उसके बाद मेजर चेंजेस हो रहे हैं आपके शेयर होल्डर में। ठीक है, डिक्लाइन हो रहा है आपका टेक्निकल डेफिशिएंसी, कंटिन्यूस डाउनफॉल हो रहा है आपके शेयर प्राइजेस। ठीक है, आपके फंड्स जो आपने डाइवर्स किया है वो आपके बहुत सारे फंड्स आपने डाइवर्सिफिकेशन कर लिया, तो ये सारे सिग्नल्स होते हैं जिससे हम बोल सकते हैं इंडस्ट्री सिकनेस होने वाला है। नेक्स्ट वन आपने जो समझा था व्हाट इज दैट इज योर इंटरनल कॉजेज। ठीक है, अभी इंटरनल कॉजेज ऑफ सिकनेस, दो तरीके से आपके सिकनेस हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कॉजेज ऑफ सिकनेस क्या है? इंटरनल कॉजेज जो विद इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू आपका कॉजेज हो सकता है। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ फाइनेंस, जब आपका वीक इक्विटी बेस होगा, जब आपने पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट कर रहे हो, इनएफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, ठीक है, कॉस्टिंग और प्राइसेस का एब्सेंस होगा, ठीक है, प्लानिंग एंड बजट का एब्सेंस होगा, आपने प्रॉपर तरीके से अपने फंड्स का यूटिलाइजेशन नहीं किया होगा, देयर इज अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड, तब आपका यहाँ पे फाइनेंस की लैक होगी और उसके कारण इंटरनली आपका सिकनेस हो सकते हैं, इंटरनली कॉज हो सकता है फॉर योर इंडस्ट्री सिकनेस। तो लैक ऑफ फाइनेंस में हम क्या बोल सकते हैं? वीक इक्विटी बेस, poor utilization of asset, inefficient working capital management, absence of costing, pricing, absence of planning and budgeting, inappropriate utilization of funds, and too much diversification of funds can create a internal cause for the sickness. Next one is bad production policy. When you have a wrong selection of the site which is related to production, ठीक है, when you are having an inappropriate plant and machinery, you are having a bad maintenance of plant and machinery, you are having a lack of quality control, you are having a lack of standard research and development, तो उसके कारण भी आपका यहाँ पे इंडस्ट्री सिकनेस हो सकता है। मार्केटिंग एंड सिकनेस क्या होगा? जब आप रॉन्ग डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हो, यू आर हैविंग अ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ इनएप्रोप्रिएट प्रोडक्ट मिक्स, देयर इज अ एब्सेंस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग, देयर इज अ रॉन्ग मार्केट रिसर्च मेथड, देयर इज अ बैड सेल प्रमोशन, उस टाइम भी हम बोल सकते हैं कि मार्केटिंग के थ्रू आपका सिकनेस हो सकता है। नेक्स्ट वन इज इनएप्रोप्रिएट पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है, आप अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, यू आर हैविंग अ बैड वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, यू आर हैविंग अ बैड लेबर रिलेशन, you are having a lack of behavior approaches towards your employee which can causes dissatisfaction among the employee and the worker, and due to this inappropriate human resource management it can have a industry sickness. Next one is poor management. If you are having a inefficient management team, if you are having प्रॉपर तरीके से आपका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो रहा है, इनएक्सपीरियंस मैनेजर है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स नहीं है, डिसऑनेस्टी शो कर रहे, इम्प्रॉपर सिलेक्शन हो रहा है हर एक चीज का, तो ये पुअर मैनेजमेंट के कारण भी आपका इंडस्ट्री सिकनेस हो सकता है। उसके बाद अनवांटेड एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, अननेसेसरी आपका एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है, अननेसेसरी आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, बिकॉज एक्सपांशन की जरूरत नहीं है, तब टाइम आप एक्सपांशन
करो, डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, उसे डाइवर्सिफिकेशन करो, तो ये भी आपके इंटरनल कॉजेज हो सकते हैं. And next one, last one, that is delay in payment. Delay in your principal and your ancillary liabilities, or delay in making the payments of your liability, वो भी आपका रीजन हो सकता है for the internal causes for the sickness. नेक्स्ट हमने कौन सा कॉजेज सीखा था? एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ सिकनेस. नाउ एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ सिकनेस, ठीक है, जहां पे विच अफेक्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप आउटसाइड, ठीक है, विच अफेक्ट योर इंटरनल, जो भी आपका इंडस्ट्री सिकनेस हो रहा है वो आउटसाइड से हो रहा है, तब हम बोलेंगे एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ सिकनेस. उसमें फर्स्ट वन है पर्सनल कंस्ट्रेंट. व्हेन देयर इज अ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल लेबर, ठीक है, or a manpower, there will be always a disparity in your industrial and your general labor being invested in that area. तो जब भी disparity है कि उस इंडस्ट्री एरिया में आपको स्किल लेबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, if you are having a non availability of a skilled labor, that can create an hurdles and that can create a sickness, because you are requiring a skilled labor in industry area, you are requiring a skilled labor in your industry and you are not getting an skilled labor, तो वो भी आपका इंडस्ट्री सिकनेस हो सकता है. मार्केटिंग कंस्ट्रेंट में लिबरल आपकी लाइसेंस पॉलिसी है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है लार्ज क्वांटिटी को परचेस करने के लिए, ग्लोबल मार्केटिंग सिनेरियो चेंज हो रहा है, एक्सेस टैक्स पॉलिसी हो रही है गवर्नमेंट से, एंड मार्केट का रिसेशन चल रहा है, तो उसके कारण भी आपका ये एक्सटर्नल कॉजेज हो सकता है. प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट में क्या बोल सकते हैं? व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ पावर, फ्यूल एंड हाई प्राइसेस है आपके रॉ मटेरियल के, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है, तो उस टाइम भी आपका ये एक्सटर्नल कॉजेज हो सकता है योर इंडस्ट्री सिकनेस का. फाइनेंस कंस्ट्रेंट में आपको क्रेडिट का रेस्ट्रिक्शन पॉलिसी है, ठीक है, आपका डिस्पर्समेंट ऑफ लोन बाय द गवर्नमेंट उसमें डिले हो रहा है, अनफेवरेबल इन्वेस्टमेंट है, तो उसके कारण भी आपका एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ सिकनेस हो सकता है. गवर्नमेंट पॉलिसी, व्हेन आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी जो हाईली अफेक्ट होता है इंडस्ट्री सिकनेस के, बिकॉज फ्रिक्वेंट चेंज इन योर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ब्रिंग अनस्टेबिलिटी इन अ बिजनेस, एंड उसके कारण आपका इंडस्ट्री सिकनेस जो है वो कंपनी इतनी कॉप अप नहीं कर सकते हैं और उसके कारण इंडस्ट्री सिकनेस हो सकती है. नेचुरल कैलेमिटीज वेरी इजी, आपके फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, कोई भी आपका अफेक्शन हुआ, लाइक योर कैन बीइंग अ इंडस्ट्री सिकनेस, बिकॉज उस नेचुरल कैलेमिटी से आपको खड़ा होना है, उस टाइम आप अच्छे से खड़े नहीं हो सकते, प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, तो नेचुरल कैलेमिटीज के कारण भी आपका यहाँ पे इंडस्ट्री सिकनेस हो सकती है. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जब भी आपको रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, पावर की अवेलेबिलिटी नहीं है, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, स्किल लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं है, देयर इज नॉट प्रॉपर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके कारण भी आपका इंडस्ट्री सिकनेस हो सकता है. दिस आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ द सिकनेस एंड द डेफिनेशन एंड द मीनिंग एंड योर सिम्टम्स एंड सिग्नल्स ऑफ द सिकनेस, which are going to be which are already being explained in your video lecture. So just go through the explanation. Thank you students for listening.